बांग्लादेश जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी तरक्की के लिए और अपनी आर्मी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ममालिकों के साथ डील कर चुके हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि बांग्लादेश म्यांमार का मुकाबला कर सकता है। क्या बांग्लादेशी आर्मी का ताकत म्यांमार आर्मी से ज्यादा है? ये दोनों पड़ोसी ममालिक है और पड़ोसी ममालिक होने के साथ ये एक दुश्मन मुल्क भी है। आपस में ये कई बार लड़ चुके हैं और कई बार हमने आपके साथ रिपोर्टिंग भी शेयर की है कि बॉर्डर पे ओपन फायरिंग चलती है। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या बांग्लादेश की आर्मी म्यांमार आर्मी से ज्यादा ताकतवर है या इन दोनों में से कौन सी आर्मी ज्यादा ताकतवर है। रिपोर्ट देख के आपके साथ बात करेंगे। প্রতিবেশী দুই দেশ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার। মিয়ানমার রয়েছে সামরিক জান্তার শাসনে আর গণতান্ত্রিক শাসনে বাংলাদেশ। দুই দেশের সামরিক সক্ষমতা কেমন চলুন জেনে নিই। মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা বাজেট $270 কোটি। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট মিয়ানমারের প্রায় 2.5 গুণ, যা $699,50,40,000। বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বেতন ভাতার পেছনে এই বরাদ্দ ব্যয় করা হয়। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইন্ডেক্স অনুসারে 2024 সালে সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান 37তম আর মিয়ানমারের অবস্থান 35তম। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের হিসেব মতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা 1.5 লাখের মতো। 705টি ট্যাঙ্ক আছে ওই সেনাবাহিনীতে, আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে আছে 1,63,000 সদস্য। তাদের হাতে ট্যাঙ্ক আছে 320টি। মিয়ানমারের হাতে সেলফ প্রোপেলড আর্টিলারি আছে 215টি, টোউড আর্টিলারি 1,868টি, আর মাল্টিপল লঞ্চ রকেট আর্টিলারি 586টি। আর বাংলাদেশের আছে 27টি সেলফ প্রোপেলড আর্টিলারি, 437টি টোউড আর্টিলারি এবং 71টি মাল্টিপল লঞ্চ রকেট আর্টিলারি। অন্যান্য সামরিক যুদ্ধযান 8,139টি আছে মিয়ানমারের কাছে। ট্যাঙ্ক ছাড়াই অন্য আর্মার্ড ভেহিকল বাংলাদেশের আছে 13,100টি। এবার তাকানো যাক দুই দেশের আকাশ প্রতিরক্ষার দিকে। মিয়ানমারের মোট এয়ারক্রাফটের সংখ্যা 293টি, আর বাংলাদেশের হাতে আছে 216টি আকাশযান। মিয়ানমারের 58টি যুদ্ধ বিমান, 31টি পরিবহন বিমান, 93টি প্রশিক্ষণ বিমান, 80টি হেলিকপ্টার আর 9টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার আছে। আর বাংলাদেশের ফাইটার প্লেনের সংখ্যা 44টি, ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট 16টি, প্রশিক্ষণের জন্য এয়ারক্রাফট 87টি আর হেলিকপ্টার আছে 73টি। মিয়ানমারের বিমান বাহিনীতে সদস্য আছে 15,000 আর বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে 17,400 জন সদস্য কর্মরত আছেন। মিয়ানমারের নৌবাহিনীতে কাজ করছে 16,000 সদস্য। দেশটির হাতে থাকা মোট অ্যাসেটের সংখ্যা 227, 6টি ফ্রিগেট আর 3টি করভেট আছে দেশটির হাতে। 3টি সাবমেরিন আর 2টি মাইন ওয়ারফেয়ার সিস্টেমেরও মালিক দেশটির নৌবাহিনী। 124টি পেট্রোল ভেসেলও আছে দেশটির। অন্যদিকে বাংলাদেশের নৌবাহিনীতে বর্তমানে 25,100 সদস্য কর্মরত। এই বাহিনীর হাতে আছে মোট 117টি অ্যাসেট, 7টি ফ্রিগেট আর 6টি কভার্ট, 2টি সাবমেরিনও আছে। আরও আছে 5টি মাইন ওয়ারফেয়ার সিস্টেম, পেট্রোল ভেসেল আছে 55টি। তবে অস্ত্র আর সেনা সংখ্যার তথ্য দিয়ে কোনো দেশের শক্তি যে বিচার করা যায় না, সামরিক শক্তির পাশাপাশি জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান, শিল্প, কর্মক্ষমতা এইসব বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়। दोनों की आर्मी की पावर या रैंकिंग आगे पीछे है। जैसे कि बांग्लादेश की ये देखे तो 36 और म्यांमार की देखे तो 35। तो आपस में ये चलती है, कभी बांग्लादेश 34 पे होता है, ये 35 पे होते हैं, कभी बांग्लादेश जो है 36 पे चला जाता है, ये लोग 34 पे आ जाते हैं। ये रैंकिंग में चलता रहता है। दोनों ममालिक काफी ताकतवर है और दोनों ममालिक एक दूसरे को काफी टक्कर दे सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कई सारी लड़ाई होती है और अक्सर बॉर्डर के एरियाज में होती है। और ये होती इसीलिए क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ इलीगल लोग रहते हैं, जो कि जिनको टेररिस्ट कहते हैं। ये वो लोग हैं
हैं जो कि कभी बांग्लादेश में जाके हमला करते हैं, तो कभी इंडिया में हमला करते हैं, तो कभी म्यांमार में। अगर म्यांमार में हमला करते हैं तो बांग्लादेश में आके घुस जाते हैं, पनाह ले लेते हैं। अगर बांग्लादेश में हमला करते हैं तो म्यांमार में पनाह लेते हैं, वहां पे पनाह लेने के बाद फिर इंडिया पे हमला कर देते हैं। तो इन दोनों ममालिकों में से वो फिर एक जगह पे रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनके लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जब दोनों ममालिकों के बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती है तो दोनों ममालिकों को लगता है कि यार बांग्लादेश को लगता है कि यार म्यांमार मुझ पे हमला कर रहा है, तो म्यांमार को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश मुझ पे हमला कर रहा है, और बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि म्यांमार मुझ पे हमला कर रहा है। तो दोनों ममालिकों के बीच में गलत चीजों की वजह से फायरिंग हो जाती है और लड़ाई होती है। लेकिन होती क्यों है कि ये इन लोगों की वजह से होती है जो कि चिटागोंग घाटियां में है या इस तरीके से कुछ एरिया है जहां पे ये सारे लोग छुपे होते हैं, और ये अक्सर बांग्लादेशी और इंडियन आवाम को तंग करती है।